Assalamu alaikum and good morning class 7th. I hope you're fine. Welcome to your science class and I'm your science teacher Miss Nida Zamurad. Students, we were talking about different groups of animals. As I told you that animals are divided into two major groups, vertebrates and invertebrates. Vertebrates are those animals which have backbone in their bodies and invertebrates are those which are without backbone. Vertebrates are further classified into five groups like fish, amphibians, reptiles, birds and mammals. In our previous lecture, we discussed about general characteristics of amphibians and mammals. And today we will discuss about the general features of remaining three classes, fish, reptiles and birds. Let's start. Open page number 41 of your books. Fish. Students, as you know that fish live in water. They live in fresh water, rivers, streams, seas or in oceans. So in their specific habitat, how do they move? They move with their fins, tails and streamlined bodies. They have specialized structures in their bodies. These structures are called fins. Their tail is very strong and powerful, and moreover their bodies are shaped like streamlined. So these features enable them to move easily in water. Second characteristic, they have gills for breathing. They exchange gases with their environment with the help of special structure which are known as gills. Gills are filled with blood vessels. They obtain oxygen which is dissolved in water. Water comes into their mouth and from that water oxygen is absorbed into gills विच आर फिल्ड विद ब्लड वेसल्स और उन ब्लड वेसल से फिर ऑक्सीजन जो होती है वो थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होती है और इसी तरह से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर गिल्स में आती है और देन पानी के साथ वो भी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर जाती है. नंबर 3, दे हैव स्केल्स ऑन द स्किन फॉर प्रोटेक्शन. इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं जो कि इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्शन के लिए इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं. नंबर 4, दे आर कोल्ड ब्लडेड. कोल्ड ब्लडेड मीन्स कि इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, वो सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होता रहता है, मतलब एडजस्ट होता रहता है. ठीक है, जिस वाटर में ये रहते हैं वाटर के टेम्परेचर के साथ साथ इनकी बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट हो जाता है. सो सच एनिमल्स विच डोंट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर विच कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर विद देयर सराउंडिंग टेम्परेचर, दे आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. सो फिश आर कोल्ड ब्लडेड. दे लिव इन वाटर एज यू ऑल नो. रिप्रोडक्शन अकर्स बाय लेइंग एग्स. ठीक है, मोस्टली फिशेस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बाय लेइंग एग्स. दे ले एग्स एंड देन फ्रॉम दोज एग्स न्यू बेबीज कम आउट. These all are examples of fish. Next class of mammals is reptiles. Reptiles have lungs for breathing. इनके अंदर ब्रीदिंग बिल्कुल उसी तरह होती है जिस तरह से मैमल्स के अंदर होती है. दे हैव लंग्स with the help of which they can exchange gases with their environment. स्किन इनकी कैसी होती है? ड्राई एंड स्केली. ठीक है, स्किन इनकी बहुत ड्राई होती है और उसके ऊपर हार्ड स्केल्स होते हैं. लाइक जैसे आप देखिए स्नेक, तो हार्ड स्केल्स की मदद से क्या होता है, स्नेक्स कैन क्रॉल ऑन द ग्राउंड. ठीक है, उससे उनकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता. वो स्किन स्केल इतने हार्ड होते हैं इनकी बॉडी के कि ये इजीली ग्राउंड के ऊपर जो होते हैं ना वो क्रॉल कर सकते हैं. दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड लाइक फिश. That means they can adjust their body temperature according to their surroundings. They lay eggs with leathery shells to prevent them from drying up. इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है with the help of eggs. ठीक है, तमाम रेप्टाइल जो होते हैं दे ले एग्स और इनके एग्स जो होते हैं दे आर कवर्ड विद हार्ड लेदरी शेल. ठीक है, बहुत एक सख्त शेल होता है इनके अंडों के बाहर ताकि वो एग्स जो होते हैं वो ड्राई अप ना हो सकें. और इनका हैबिटेट क्या है? सम लिव ऑन लैंड एंड सम लिव इन वाटर. जैसे कि स्नेक है, lizard they live in land, and some live in water like crocodile and tortoise. These are examples of reptiles. Next class is birds. They have beaks and wings but not all can fly. ठीक है, birds के अंदर आपको पता है students, they have beaks and they have wings. They can fly but not all birds can fly. Like ostrich can not fly क्योंकि ostrich की body जो होती है वो बहुत heavy होती है. दे हैव फीदर्स. विंग्स के ऊपर छोटे छोटे पर होते हैं जिनको फेदर्स कहते हैं हम. दे आर वार्म ब्लडेड. ये कोल्ड ब्लडेड नहीं होते. दे आर वार्म ब्लडेड मतलब इनकी जो बॉडी होती है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है विच इज़ मोस्टली हायर दैन दैट ऑफ द सराउंडिंग, जो कि यूजली सराउंडिंग इन्वायरमेंट से ज़्यादा होता है. ठीक है, दे ले एग्स विद हार्ड शेल्स. रिप्रोडक्शन इनके अंदर भी एग्स के थ्रू होती है. दे ले एग्स फ्रॉम विच न्यू बेबीज कम आउट एंड देयर एग्स हैव हार्ड शेल्स. रीज़न वही है फॉर द प्रोटेक्शन.
सो दिस वॉज अबाउट वर्टिब्रेट्स. 5 ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स हमने स्टडी किए. एम्फीबियंस, मैमल्स, फिश, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. Now come towards invertebrates. Invertebrates are those animals which are without backbone, and invertebrates are further classified into two groups. Number one group, the animals with jointed legs, and second one, the animals without jointed legs. So here we will discuss the animals with jointed legs. उनको हम आर्थ्रोपोड्स भी कहते हैं. आर्थ्रोपोड्स वो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनकी लेग्स क्या होती हैं, ज्वाइंटेड होती हैं. आर्थ्रोपोड्स आर इन्वर्टिब्रेट्स विद द फॉलोइंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी क्या हैं? दे हैव ज्वाइंटेड लेग्स, दे हैव सेगमेंटेड बॉडीज़. इनकी बॉडीज़ जो होती है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड होती हैं, और इनकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं. ठीक है, दे हैव हार्ड आउटर कवरिंग नोन एज एक्सोस्केलेटन विच दे शेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज दे ग्रो. जैसे जैसे ग्रो करते हैं टाइम टू टाइम वो स्केलेटन जो होता है वो ये शेड करते रहते हैं, यानी कि पुराना स्केलेटन जो होता है वो गिर जाता है और नया स्केलेटन ग्रो करता रहता है. ठीक है, एग्जांपल्स हमारे पास हैं इंसेक्ट्स, सेंटीपैड्स, मिलीपैड्स, क्रस्टेशियंस एंड एरेक्निड्स. दीज आर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स. इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं. ये सब अभी हम जिसकी बात करेंगे दीज आर आर्थ्रोपोड्स. वो इंसेक्ट्स या वो आप कह लें ऑर्गेनिजम्स विच आर विद जॉइंटेड लेग्स, जिनकी लेग्स जॉइंटेड होती हैं और बॉडीज़ क्या होती हैं, सेगमेंटेड होती हैं. सबसे पहले है क्रस्टेशियंस. क्रस्टेशियंस में क्या होता है, देयर हेड्स आर नॉट क्लियरली डिफाइंड. इनका जो हेड होता है वो इतना क्लियरली डिफाइंड नहीं होता, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट क्रस्टेशियंस, जैसे लॉबस्टर है, हर्मिट क्रैब, श्रिम्प. इनके हेड्स क्लियरली डिफाइंड नहीं हैं. दे हैव 2 पेयर्स ऑफ एंटीना. ये देखिए, इसको कहते हैं एंटीना. ये सिग्नलिंग के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, इनके अंदर 2 पेयर्स होते हैं एंटीना के. दे हैव कंपाउंड आइज. मोस्ट हैव गिल्स एंड लिव मेनली इन वाटर. मेनली जो क्रस्टेशियंस होते हैं दे लिव इन वाटर, और इनके अंदर गिल्स होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज फॉर ब्रीदिंग पर्पज़. और इनकी जो आइज़ होते हैं उनको हम कहते हैं कंपाउंड आइज. दीज वर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रस्टेशियंस. नाउ कम टूवर्ड्स इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स से आप बहुत सारे इंसेक्ट्स से फेमिलियर होंगे, आई होप सो. लाइक एंट्स हैं, लेडी बर्ड, बटरफ्लाई, हनी बी, प्रेइंग मैंटिस, ड्रैगन फ्लाई. इनमें से ज़्यादातर को तो आप मेरे ख्याल में अच्छी तरह से जानते हैं. दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स. मोस्टली इंसेक्ट्स के अंदर कितने पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं? 3, यानी कि 6 लेग्स होती हैं. दे हैव 3 बॉडी सेगमेंट्स. इनकी बॉडी जो होती है वो 3 सेगमेंट्स में डिवाइड होती है. हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. हेड यानी कि सर वाला रीजन, थोरैक्स चेस्ट कैविटी एंड एब्डोमेन इनकी जो बाकी बॉडी कैविटी होती है. दे हैव 1 पेयर ऑफ एंटीना. इनके अंदर भी एंटीना होते हैं लेकिन सिर्फ एक पेयर होता है, जैसे कि ये. मोस्ट हैव कंपाउंड आइज. मोस्ट अडल्ट्स हैव विंग्स. मोस्टली जो अडल्ट इंसेक्ट्स होते हैं दे हैव विंग्स एंड दे कैन फ्लाई, लाइक बटरफ्लाई है, हनी बी है, ड्रैगन फ्लाई. नेक्स्ट ग्रुप इज एरेक्निड्स. एरेक्निड्स हैव 4 पेयर्स ऑफ लेग्स. ठीक है, यानी कि इनमें 8 लेग्स होती हैं. इनकी आइज कंपाउंड नहीं होती, सिंपल आइज होती हैं, एंड दे डोंट हैव एंटीना. एग्जाम्पल हमारे पास एरेक्निड्स की है स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक्स एंड माइट्स. नेक्स्ट ग्रुप इज सेंटीपैड्स. दे हैव 1 पेयर ऑफ एंटीना. इनके अंदर एंटीना होते हैं लेकिन एक पेयर होता है. मोस्टली इनकी आइज सिंपल होती हैं. दे हैव मैनी लेग्स विद 1 पेयर ऑन ईच बॉडी सेगमेंट. इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, जहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली दैट बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी सेगमेंट्स लाइक दिस. ये जो है ये एक सेगमेंट है. ठीक है, ये आपको लाइनें नज़र आ रही होंगी, ये दूसरा सेगमेंट है, दिस इज़ थर्ड सेगमेंट. तो हर सेगमेंट जो होता है ना, हर सेगमेंट पे क्या होता है, 1 पेयर ऑफ लेग्स. इनका नाम ही सेंटीपैड, इसलिए सेंटी बेसिकली कहते हैं हंड्रेड्स को, पैड्स पैड जो है ये निकला है लेग्स से. सो सेंटीपैड मोस्टली ये कंसिडर किया जाता है दैट दे हैव 100 लेग्स. सो यहाँ पर भी ये लिखा है दे हैव मैनी लेग्स. बहुत ज़्यादा लेग्स होती हैं इनकी, विद 1 पेयर ऑन ईच बॉडी सेगमेंट. हर बॉडी सेगमेंट पर एक पेयर, यानी कि दोनों साइड्स पर एक एक लेग होती है. मेनली दे आर कार्निवोरस. कार्निवोरस मीन्स कि ये दूसरे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं. दे आर नॉट हर्बीवोरस. ये मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, छोटे कीड़े मकोड़ों का. एग्जांपल्स हैं सेंटीपैड के, ये नीडीज भी इसको कहा जाता है. देन मिलीपैड्स. मिली मीन्स 1000. दे हैव 1 पेयर ऑफ एंटीना. दे हैव सिंपल आई जस्ट लाइक सेंटीपैड्स. दे हैव मैनी लेग्स विथ 2 पेयर्स ऑन ईच बॉडी सेगमेंट. अब सेंटीपैड्स में क्या था कि हर बॉडी सेगमेंट पे 2 पेयर्स थे, एक पेयर था सॉरी. जबकि इस केस में क्या है कि हर बॉडी सेगमेंट पे कितनी लेग्स हैं, 4 लेग्स हैं हर बॉडी सेगमेंट पे. सो दैट्स वाई दे आर नोन एज मिलीपैड्स, यानी कि सेंटीपैड से ज़्यादा लेग्स होती हैं इनके अंदर. सो दैट वाज अबाउट आर्थ्रोपोड्स, द एनिमल्स विद जॉइंटेड लेग्स.
और जो नेक्स्ट ग्रुप है इनवर्टिब्रेट्स का, द एनिमल्स विदाउट जॉइंटेड लेग्स, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.